The RBI eased key rules that are expected to have a positive impact on banks' capital ratios. The central bank proposed to do away with the investment fluctuation reserve IFR requirement for commercial banks and allowed banks to include quarterly profits in capital to risk-weighted assets ratio CRAR calculations irrespective of fluctuations in provisioning levels. Under current guidelines, commercial banks can include quarterly net profit in CRAR only if provisioning for NPAs does not deviate by more than 25% from the 4-quarter average, a condition the RBI has now proposed to remove. The central bank has also proposed to dispense with the IFR investment fluctuation reserve, as most commercial banks already maintain capital for market risk and follow updated norms for investment classification and valuation. The NPA-related change will mainly help in smoothing out CRAR over the year. Earlier, banks were not allowed to include quarterly profits in CRAR. This could only be done at the end of the financial year. Now, with the change, profits earned in each quarter can be included in CRAR as they accrue. That said, in overall terms, the end result remains the same, so there is no material difference on a full year basis, said a senior banker at a state-owned lender, adding that the IFR change, however, is more significant. Most banks maintain around 2% or so in IFR, which will now no longer be required. It remains unclear how this will be treated, whether it will be transferred to profits or handled in some other manner, and further clarity is awaited, he said. Through the reversal, banks could free up an IFR corpus of around 35,000 to 40,000 according to an SBI research report. Banks can use this corpus optimally and judiciously between CET1, that is Common Equity Tier 1, capital and profit and loss account, even when yields have moved up substantially during the previous quarter, the report added. According to Suresh Ganapathy, head of Financial Service Research, Macquarie Capital, the IFR requirement being done away with, in case banks fully reverse it, will be around 20 to 30 BPS for most of the banks. However, we believe banks are unlikely to reverse and may stop making incremental IFR every year. Banks anyway today have excess capital, he said, adding that the other measure is merely a reporting change for quarterly capital adequacy ratio CAR reporting with respect to accounting for NPA provisions and doesn't change the full year CAR number for banks. IFR is a buffer that banks maintain to protect against potential losses arising from fluctuations in the value of their investment portfolios, particularly due to mark-to-market (MTM) mark-to-market movements when interest rates change. Banks set aside a portion of their profits into this reserve, which can be used to absorb losses when bond prices fall, thereby ironing out the impact on earning. RBI ने कुछ प्रमुख नियमों में ढील दी है, जिससे बैंकों के पूंजी अनुपात पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। केंद्रीय बैंक RBI ने कॉमर्शियल बैंक्स के निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व IFR की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है और बैंकों को प्रावधान स्तरों में उतार चढ़ाव की परवाह किए बिना पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्तियों के अनुपात CRAR कैपिटल टू रिस्क वेटेज असेस्ड रेशियो की गणना में
त्रैमासिक क्वार्टरली प्रॉफिट को शामिल करने की अनुमति दी है। मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार कॉमर्शियल बैंक्स हर क्वार्टर में, हर तिमाही में शुद्ध लाभ को CRAR में तभी शामिल कर सकते हैं जबकि उनके NPA के लिए प्रावधान पिछले 4 क्वार्टर के एवरेज 25% से अधिक का उसमें डिफरेंस ना हो, उसमें विचलन ना हो। एक ऐसी शर्त जिसे RBI ने अब हटाने का प्रस्ताव दिया है। RBI ने निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि IFR को भी समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है, क्योंकि अधिकांश वाणिज्यिक बैंक पहले से ही बाजार जोखिम के लिए पूंजी को बनाए रखते हैं और निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन के लिए अद्यतन मानदंडों का पालन करते हैं। NPA से संबंधित बदलाव से मुख्य रूप से पूरे वर्ष के CRAR को सुचारू बनाने में मदद मिलेगी। पहले बैंकों को CRAR में तिमाही मुनाफे को शामिल करने की अनुमति नहीं थी, यह केवल वित्तीय वर्ष के अंत में ही किया जा सकता था। अब इस बदलाव के साथ प्रत्येक तिमाही में अर्जित मुनाफे को प्राप्त होते ही CRAR में शामिल किया जा सकता है। हालांकि कुल मिलाकर अंतिम परिणाम वही रहता है, इसलिए पूरे वर्ष के आधार पर कोई खास अंतर नहीं है। ये एक सरकारी बैंक के वरिष्ठ बैंकर ने बताया और यह भी बोला कि IFR में बदलाव अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, अधिकांश बैंक लगभग 2% IFR व्यक्तिगत वित्तीय संसाधन रखते हैं जिसकी अब आवश्यकता नहीं होगी। यह अब स्पष्ट नहीं है कि इसका क्या होगा, क्या इसे मुनाफे में शामिल किया जाएगा या किसी अन्य तरीके से इसका निपटान किया जाएगा, और इस संबंध में और स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है। SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार इस उलटफेर के जरिए बैंक लगभग 35,000 से 40,000 रुपए का IFR कोष मुक्त कर सकता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि बैंक इस कोष का उपयोग CET1 कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी और लाभ हानि खाते के बीच विवेकपूर्ण और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, भले ही पिछले तिमाही में यील्ड में काफी वृद्धि हुई हो। मैक्वेरी कैपिटल के वित्तीय सेवा अनुसंधान प्रमुख सुरेश गणपति के अनुसार यदि बैंक पूरी तरह से इस आवश्यकता को समाप्त कर देते हैं तो अधिकांश बैंकों के लिए लगभग 20 से 30 BPS होगा। उन्होंने कहा, हालांकि हमारा मानना है कि बैंकों द्वारा इसे समाप्त करने की संभावना कम है और वे इसे हर साल अतिरिक्त IFR बनाना बंद कर सकते हैं। बैंकों के पास वैसे भी आज अतिरिक्त पूंजी है। उन्होंने आगे कहा कि दूसरा उपाय केवल NPA प्रोविजंस के लेखांकन ऑडिट के संबंध में क्वार्टरली CAR रिपोर्टिंग में एक रिपोर्टिंग परिवर्तन है और बैंकों के लिए पूरे वर्ष के CAR नंबर को नहीं बदलता है। IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक ऐसा बफर है जिसे बैंक अपने निवेश पोर्टफोलियो के मूल्य में उतार चढ़ाव, विशेष रूप से ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण होने वाले मार्क टू मार्केट दैट इज MTM परिवर्तनों से उत्पन्न संभावित नुकसान से बचाव के लिए बनाए रखते हैं। बैंक अपने मुनाफे का एक हिस्सा इस रिजर्व में रखते हैं जिसका उपयोग बॉन्ड की कीमतों में गिरावट आने पर नुकसान की भरपाई के लिए किया जा सकता है, जिससे आय पर पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सकता है। RBI गवर्नर मिस्टर संजय मल्होत्रा के अनुसार बॉन्ड यील्ड में उतार चढ़ाव जैसे निवेशों में परिवर्तन जो बढ़ या घट सकते हैं बैंकों की लाभप्रदता पर असर डालते हैं। बैंक तब हमसे इन नुकसानों को किस्त में चुकाने की अनुमति मांगते हैं। इसलिए इस तरह की अस्थिरता को आंशिक रूप से कम करने के लिए IFR की अवधारणा शुरू की गई थी। हालांकि अब यह माना जाता है कि बाजार मूल्य जो मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन के माध्यम से दर्शाए जाते हैं को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि वे बैंकों की वास्तविक वित्तीय स्थिति को दर्शाते हैं। तदनुसार यदि निवेशों को मूल्यांकन बाजार के अनुरूप किया जाता है तो अलग से उतार चढ़ाव आरक्षित निधि की आवश्यकता कम हो जाती है। RBI के डिप्टी गवर्नर श्री J स्वामीनाथन ने बताया कि IFR का इतिहास कुछ उतार चढ़ाव भरा रहा है। इसे विशेष संदर्भ में लागू किया गया, फिर वापस ले लिया गया
और बाद में फिर से लागू किया गया। बैंकों के प्रकारों में भी एकरूपता का अभाव था। अलग अलग ऋणदाताओं के लिए अलग अलग दिशा निर्देश लागू होते थे। उन्होंने कहा, IFR को अब प्रासंगिक नहीं माना जाता है, इसलिए इसे हटाने का उद्देश्य सरलीकरण करना है। इसके अलावा बैंकों में अनुपालन का स्तर अलग अलग था, जिसके कारण पर्यवेक्षी टिप्पणियां सामने आई। इस आवश्यकता को समाप्त करने से ढांचा लागू करना आसान और अधिक सुसंगत हो जाता है। ICR के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और वित्तीय क्षेत्र रेटिंग के समूह प्रमुख अनिल गुप्ता के अनुसार IFR की आवश्यकता को हटाने के प्रस्ताव से बैंकों के रिपोर्ट किए गए टियर 1 रेशियो में कुछ सुधार होगा, क्योंकि यह वर्तमान में बैंकों की टियर 2 पूंजी में शामिल है। उन्होंने कहा, अधिकांश बैंकों के मजबूत पूंजी अनुपात को देखते हुए टियर 1 पूंजी अनुपात में वृद्धि का समग्र पूंजी अनुपात पर कोई खास सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमें उम्मीद है इस बदलाव से बैंकों के टियर 1 पूंजी अनुपात पर 6 से 12 बेसिस पॉइंट्स का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मुख्य बातें जो इससे रिलेटेड हैं वो इस बदलाव से प्रत्येक तिमाही में अर्जित प्रॉफिट को, लाभ को अर्जित होते ही CRAR में शामिल किया जा सकेगा। पूरे वर्ष के आधार पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। IFR एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे बैंक अपने निवेश पोर्टफोलियो के मूल्य में उतार चढ़ाव से उत्पन्न होने वाले संभावित नुकसान से बचाव के लिए बनाए रखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि IFR अब प्रासंगिक नहीं माना जाता है, इसलिए इसे हटाने का उद्देश्य प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके और भी विस्तृत लेख आगे प्रकाशित होंगे। धन्यवाद।